वो करें भाई। जी सर, करो शुरू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today our topic of discussion is a continuation of our last lecture in which we discussed about the presidential election of USA. As we discussed in our last lecture, that the presidential election is not a direct election, but in practice it seems uh, indirect election, but actually this is direct election. Although the US Constitution describes a system of indirect election, yet in practice, election of the president has become almost direct. The change has been brought about by the growth of powerful political parties in America. Months before the date of presidential election, the national political parties hold their national conventions and nominate their presidential candidates. The parties in each state nominate their own candidates for the presidential electoral college. The ballot papers are so printed that by one cross a voter can vote for the whole list of presidential electors put up by a particular party of his choice. This victory of a particular party in the election of presidential electors means the election of that party's candidate to the presidency. The formal election in each state and counting of the votes by Congress are conducted just as a necessary constitutional formality. Thus, to all intents and purposes, the presidential election in the United States has become direct. The country knows weeks before the actual date of election as to who is going to be elected. The voters in the states do not in fact cast vote for the presidential electors, but they cast a direct vote in favor of presidential candidates whose names are already known to them. The election of the Electoral College is just a formality. If the election of this intermediary body was not to be excluded, the same result would accrue. Thus, with the growth of strong political parties, the powers of the electing the president has been actually transferred to the people, although the framers of the Constitution wished it otherwise. On the occasion of the presidential election held in November 1968, Mr. Nixon won and Mr. Humphrey was defeated. However, there are two aspects of this election which deserve mention. Under the American indirect method of choosing a president, the possibility of a deadlock at the polls is always there. This possibility becomes a reality if uh, three or more candidates of strong national appeal fight for the presidency all the way.
It is rare under the traditional two-party system in America. Before we go further, I would like to tell you, you can see the notes I shared on your WhatsApp group. In 1968, Jar C. Wallace, the former governor of Alabama, was nominated as its candidate by the American Independent Party. There arose the possibility that neither of their candidates, Wallace, Nixon, and Humphrey, may get the requisite number of votes. There are 538 electoral votes and a majority of 278 needed for election. The total popular vote itself does not count. Fear one needed for election. The total popular vote itself does not count. Fear was expressed that the country may have to face the deadlock, and in that case it was for the House of Representatives to choose the president. It was pointed out that such things had happened in 1800 and 1824. In the first case, the problem was not the lack of majority by any candidate. It was a tie between Jefferson and Wood, who had polled 73 votes each. They were they were running mates and not opponents. The House of Representatives had through all measures to decide in favor of Jefferson. Then the Constitution was amended to that separate votes could be cast for President and Vice President. In 1824, no candidate had a majority. Andrew Jackson was first, John Quincy Adams second, and William H. Crawford third. It was a dramatic decision which the House of Representatives had to make. It all came to the vote one state ruler and one delegate. The lone delegate was reluctant to be the arbiter, but Adams won when he picked his ballot after a great war to help him to choose correctly. It is true that years of deadlock were there in 1968, but all those years were allied, and Mr. Nixon won the requisite number of electoral votes required for his election. Mr. Nixon carried 32 states with 301 electoral votes to 191 for Mr. Humphrey. The national popular vote for Mr. Nixon was uh, as you can see here, 3 crore in calculation. 3 crore 17 lakh, 3 crore 17 lakh 17,227. And for Mr. Humphrey, 3 crore 12 lakh 17,533. This showed that the difference between the two candidates was only two-thirds of 1%. It was for this reason that after the elections, Mr. Humphrey described the electoral college system as archaic and suggested that this should be scrapped and replaced with direct popular election of the president. He did not spell out a specific plan but urged the Democratic Party to take the lead in shaping and pushing a constitutional amendment to overhaul the election mechanism. After election, the president has to take the oath of office
which runs thus: I do solemnly swear or affirm that I will faithfully execute the office of the President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Although the President is otherwise irremovable during the term of his office, he can be removed by means of impeachment. The Constitution provides that the President can be impeached for treason, bribery, or other such high crimes and misdemeanors by the House of Representatives. He can be tried by the Senate with the Chief Justice of the Supreme Court as President. A two-third majority of Senate is necessary to convict. Otherwise, during the term of his office, the President is immune from the jurisdiction of ordinary courts. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्शन का प्रोसीजर, जिसमें ये पहले बताया गया था। पहले होते हैं पार्टीज के प्राइमरीज के इलेक्शन होते हैं जनवरी में। वो एक हर पार्टी इलेक्शन ईयर में कन्वेंशन कॉल करती है और वो कन्वेंशन जो है समर के अंदर हेल्ड होता है। उस कन्वेंशन में वो पहले अपने डेलीगेट्स भेजते हैं और अल्टरनेट डेलीगेट्स भेजते हैं हर स्टेट से, और वो टोटल होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द यूएसए इन ईच पार्टी कन्वेंशन 1000 डेलीगेट्स एंड 1000 अल्टरनेट डेलीगेट्स। तो वहाँ पे एक स्पीचेज होती हैं और जो प्रोस्पेक्टिव हर पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फिर नॉमिनेशन वहाँ पे भेजी जाती हैं और उनमें से किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर लिया जाता है हर पार्टी में से। अच्छा, उसके बाद फिर इलेक्शन शुरू हो जाता है प्राइमरीज का। प्राइमरीज का इलेक्शन जो है हर पार्टी जो है अपने अपने स्टेट के अंदर प्राइमरीज का इलेक्शन करवाती है। फिर उस प्राइमरीज के इलेक्शन में वो हर पार्टी के जो इलेक्टोरल्स होंगे जिन्होंने जाके नवंबर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो हर पार्टी अपने इलेक्टोरल्स जो है उनको इलेक्ट करती है। तो वो इलेक्टोरल्स का इलेक्शन जो है पहले तो होता है हर पार्टी के अंदर। तो हर पार्टी फॉर एग्जांपल एक न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी के लहदा है और डेमोक्रेट्स के लहदा है, वो हर न्यूयॉर्क में हर काउंटी के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर एरिया में जो है वो जितने उनके उस स्टेट के अंदर इलेक्टोरल होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बताए गए हैं कि हर स्टेट को ये जितने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर होंगे प्लस टू जो सेनेटर हैं उनको मिला के, यानी कि जितने मेंबर्स कांग्रेस में होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के और 2 सेनेट, उतने ही इलेक्टोरल वोट होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो उसी वो फिर जो इलेक्टोरल्स हैं वो हर पार्टी जो है उनका पहले प्राइमरी इलेक्शन करती है। तो प्राइमरी इलेक्शन में तो वोटिंग भी होती है और उसके बाद फिर जो है किसी जहाँ पे आबादी थोड़ी होती है वहाँ पे टाउन हॉल में इकट्ठे कर दिया जाता है लोग। तो वहाँ पे जो शो ऑफ हैंड के थ्रू भी इलेक्ट किए जाते हैं बंदे, उनको उसको कहते हैं कॉकस, CAUCUS। फिर हर पार्टी अपने अपने इलेक्टोरल्स जो है उनका इंतखाब करने के बाद फिर नवंबर में उनका इलेक्शन होता है पूरी स्टेट के अंदर। तो उनको फिर वोट कास्ट करना होता है हर पार्टी के इलेक्टोरल्स को पूरी स्टेट की पॉपुलेशन में। यानी जब इलेक्टोरल्स सिलेक्ट किए जाएंगे कि ये बंदे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जाके तो नवंबर में इलेक्शन ईयर के पहले तो उनको सिलेक्ट करेंगे पार्टी जो मेंबर्स हैं विद इन पार्टी इलेक्शन करवा के। फिर वो बंदे जब फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क के अंदर
43 इलेक्टोरल 43 हैं इलेक्टोरल, 41 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं, 2 सेनेट के, तो 43 हो गए कांग्रेसमैन, तो 43 ही इलेक्टोरल होंगे। तो हर पार्टी जो है न्यूयॉर्क में अपने 43 दोनों पार्टी जो है अपनी अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवा के बंदे जो है सिलेक्ट करके उनको नवंबर में जो इलेक्शन आएगा, उनको नवंबर के इलेक्शन में उनको स्टैंड करेंगे फॉर दी पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट। यानी पहले तो वो आए हैं विद द वोट्स ऑफ पार्टी मेंबर्स, फिर आ गया जब नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो फिर वो स्टैंड हो जाएंगे पूरी स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उनके सामने। फिर वो लोगों को पता ही होता है कि ये जो 43 एक साइड पे इलेक्टोरल है बंदे जो खड़े हुए हैं, ये है रिपब्लिकन पार्टी के, और ये इस साइड पे 43 जो हैं ये डेमोक्रेट्स के हैं। तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं दोनों पार्टीज के, वो भी पहले ही नॉमिनेट हो चुके होते हैं कन्वेंशन के अंदर। तो वो फिर जब लोग जाके वोट कास्ट करने जाते हैं इलेक्टोरल्स को, तो उनको पता होता है कि हम अगर ये डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल को वोट कास्ट कर रहे हैं, इट मीन्स के इनका जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो फलां बंदा है। तो ये इलेक्शन इन प्रैक्टिस आपको लगता है कि ये इनडायरेक्ट है, लेकिन जब वोटर जाके स्टैंप करते हैं तो वो स्टैंप तो होती है इलेक्टोरल्स के नाम के आगे, लेकिन जब वो स्टैंप कर रहे होते हैं उनकी इंटेंशन ये होती है कि हम फलां प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को स्टैंप कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टैंप वो जो बैलेट पेपर है उस पर तो स्टैंप लग रही है इलेक्टोरल के नाम के आगे, लेकिन जो वोटर है उसकी इंटेंशन ये है कि इस जो जिस पार्टी के ये इलेक्टोरल हैं इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो ना है, फॉर एग्जाम्पल ट्रंप है इस साल जो होना है, तो या डेमोक्रेट्स का जो बाइडन है, तो इंटेंशन उनकी होगी कि जी हम ट्रंप को वोट कास्ट करेंगे या जो बाइडन को करेंगे, लेकिन बैलेट पेपर पे जब स्टैंप लगनी है वो लगेगी जो इलेक्टोरल हैं उनके नाम के आगे। तो इन प्रैक्टिस दिस इलेक्शन सीम्स टू बी इनडायरेक्ट, बट इन रियलिटी दिस इलेक्शन इज डायरेक्ट इलेक्शन। तो फिर जो इलेक्टोरल्स के नाम होते हैं बैलेट पेपर के ऊपर जब प्रिंट किए होते हैं, तो वोटर्स के पास ये चॉइस होती है, वो सिर्फ एक स्टैंप अगर कर दें तो उसके नीचे जितने नाम आ जाएंगे उस स्टैंप के नीचे, यानी अगर स्टैंप कर दें वो डेमोक्रेट्स के तो वो 43 जो है वो उनको चले जाएंगे, या अगर उधर कर दें सॉरी रिपब्लिकन को तो वो उधर यानी चले जाएंगे, उसके सारे वोट उस बंदे के उस तरफ चले जाएंगे। तो ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट in reality this is a direct election, but the constitution provides the system of indirect election। तो ये तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इलेक्शन का प्रोसीजर है। उसके बाद इस ऐसा जो इलेक्शन है इसके अंदर हमेशा से ये कह रहे हैं कि डेडलॉक की जो प्रोबेबिलिटी हर वक्त होती है कि डेडलॉक राइज हो सकता है। तो इन हिस्ट्री जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 1968 के अंदर हुआ, निक्सन और हम्फ्री जो है उसके दरमियान हम्फ्री जो है वो डिफीट हो गया। तो आल्दो जो हम्फ्री है उसको जो वोट मिले थे जो लोगों ने वोट कास्ट किए, तो वो था उनका डिफरेंस सिर्फ कुछ थाउजेंड्स का। इलेक्टोरल सिस्टम के तहत वो निक्सन जो है जीत गया, और फिर उसने कहा कि जी ये ना अमेंडमेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टू होल्ड दी
डायरेक्ट इलेक्शन। तो उसकी वजह ये है कि जब इलेक्टोरल्स को आप वोट कास्ट करते हैं जाके वोटर, नवंबर के अंदर जब इलेक्शन होता है, तो उसमें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर 43 इलेक्टोरल हैं न्यूयॉर्क के, तो वहां पे ट्रंप भी इलेक्शन लड़ रहा है और जो बाइडेन भी इलेक्शन लड़ रहा है। और जो ट्रंप की पार्टी के हैं इलेक्टोरल्स, तो उनको वोट वहां पे मिल गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 23 23 और 24 कह लें, 24 मिल गए हैं। और जो है दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट जो बाइडन, उनको मिल गए हैं 23। तो ट्रंप की पार्टी को मिला है एक इलेक्टोरल वोट ज्यादा। तो जब काउंटिंग होनी है तो वो 43, क्योंकि टोटल उधर 43 है, काउंटिंग में सारे ही 43 जो है ट्रंप को चले गए। यानी जो बंदे नहीं थे, जब अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो सारी जो स्टेट्स हैं उनकी काउंटिंग करनी चाहिए, उनके जो इलेक्टोरल हैं वो लहदा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बंदा जो है वो एक कैंडिडेट, एक वोट इलेक्टोरल वोट उसका ज्यादा है दूसरे से, तो उसको मिल जाने हैं वो जो जितने हारे हुए को भी मिले हैं और जितने उसने जीत के लिए, वो सारे के सारे ही 43 वोट फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क वाले वो ट्रंप को चले जाएंगे। जो हारा था उसको अगर 22 मिले हैं या 23 वोट मिले हैं, उसका जीरो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। लेकिन वो इतने जो इलेक्टोरल वोट कास्ट करने के लिए पता नहीं कितने हजारों लोगों ने आगे वोट कास्ट किया होता है, तो उनकी जो राय है, उनकी जो ओपिनियन है, उनकी जो चॉइस है, वो तो थी जो बाइडेन की। लेकिन एक इलेक्टोरल वोट ट्रंप को ज्यादा मिला, तो वो सारी जिनकी चॉइस जो बाइडेन की थी, वो सारे के सारे वोट जो हैं वो ट्रंप को चले गए। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली एक इसके अंदर फला मौजूद है, दैट नीड्स टू बी अमेंडेड। उसके बाद इलेक्शन होने के बाद जनवरी में जो प्रेसिडेंट है वो अपना हल्फ लेता है, तो प्रेसिडेंट के जो हल्फ है उसकी वर्डन जो है वो इसमें दी है कि I do solemnly swear or affirm that I will faithfully execute the office of the President of United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of United States. जब प्रेसिडेंट अपना ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन करेगा या उसको होल्ड करेगा, he have to first put oath। तो जो ओथ है, जो हलफ है, उसकी जो वर्डिंग इसके अंदर दी गई है कि मैं जो अफर्म करता हूँ कि या कसम खाता हूँ कि मैं फेथफुली ईमान के साथ अपना ऑफिस जो है इसको प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का, इसकी जो फंक्शन है इनको डिस्चार्ज करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, और मैं अपनी बेहतरीन जो काबिलियत है उसकी और बेहतरीन काबिलियत और बेहतरीन सलाहियतें गुरुए कार लाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उसको महफूज करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा और डिफेंड करूंगा। अब ये प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, वजाहत तो ये तीनों का मीनिंग जो है ये सिमिलर सा ही है, लेकिन अगर आप इसको डीप एप्रिसिएशन करेंगे तो डिफेंड मतलब दफा करूंगा, प्रोटेक्ट यानी हिफाजत करूंगा, और प्रिजर्व करना वो भी महफूज करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का यानी ये आप कह लें कि मैं वफादार रहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, मैं उनके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को मैं ब्रोक नहीं करूंगा, ब्रेक नहीं करूंगा और अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम नहीं करूंगा। यानी आप कह लें कि
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो भी पावर्स एंड लिमिट्स एंड जुरिस्डिक्शन डिटरमन की गई है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट उसका हलफ लेता है कि मैं इसके बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं करूँगा। उसके बाद प्रेसिडेंट की जो इम्पीच पर रिमूवल फ्रॉम दी ऑफिस है उसका प्रोसीजर है, तो वो ये बता रहे हैं कि ऑल दो द प्रेसिडेंट अदरवाइज इरिमूवेबल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज office, he can be removed by means of impeachment. The Constitution provides that the president can be impeached for treason, bribery, or other such high crimes and misdemeanors by House of Representatives. And the President of United States of America cannot be removed from the office unless he committed uh, the crime of treason, ब्राइबरी यानी रिश्वत ली है, ट्रियन गद्दारी की है, या कोई हाई क्राइम दूसरे हैं, या मिसडिमिनर्स है बाय दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद ट्रायल उसका होगा, ही कैन बी ट्राइड बाय द सेनेट विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द प्रेसिडेंट। उसका ट्रायल जो है वो होगा सुप्रीम कोर्ट सॉरी सेनेट के अंदर एट द टाइम ऑफ ट्रायल ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द चार्जेस ऑफ treason, bribery, or other high crimes. The Chief Justice of Supreme Court of the United States of America shall preside the Senate and impeachment proceeding in the Senate, unlike the Vice President of the United States of America, who preside over the Senate in other routine days of proceedings of the Senate. A two-thirds majority of Senate is necessary to convict. Yani, after completion of the trial, there shall be a voting in the Senate and to convict the president on the charges of treason or other high crimes or bribery. The two-third majority is required in the Senate to convict our president. Otherwise, during the term of his office, the president is immune from the jurisdiction of ordinary courts. यानी ordinary courts की जो jurisdiction है, उनसे president को immunity हासिल होती है during his term in the office of president. उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। when the presidential candidate has been chosen, the selection of the party nominee for the vice presidency is made in the same way, but usually with less trouble and sometimes in a great hurry, for the big fight is over and delegates are in a mood to get home. But in nominating the candidate for vice presidency, there are roll calls, speeches, demonstrations, and balloting, all less exciting as a rule. In some cases, however, the context for the nomination becomes close and exciting. In is an axiom of practical politics for the vice presidential nominee should be someone who will balance the ticket. That is, he should supplement and strength of the presidential nominee by being drawn from another region of the counting and representing a different section of the party. At his inauguration to office, every new vice president takes an oath of office like the president, but unlike the president, he has no official residence. He too can resign his office and be removed by impeachment from treason duties. उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का, तो वो सिमिलर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी,
वही प्रोसीजर होगा उसकी नॉमिनेशन, फिर उसका जब इलेक्शन आएगा तो प्रेसिडेंट का, उसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होता है साथ ही। तो फिर जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो वो विन कर जाता है बंदा, तो उसको, यानी पहले जब उसकी नॉमिनेशन होती है तो वो ऐसा बंदा वो चूज करती है पार्टी कि जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट करे, प्रेसिडेंट को सप्लीमेंट करे। तो पार्टी के जो मेंबर हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो ऐसा बंदा ले जो प्रेसिडेंट का उनका कैंडिडेट है, जिस स्टेट से वो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, या जिस वो, यानी अगर वो वाइट है और वो एक अमीर स्टेट से है तो वो कोशिश पार्टी करती है कि कोई अदर एथनिक ओरिजिन का जो बंदा है, यानी ब्लैक होगा या कोई एशियन या इस तरह, पार्टी की कोशिश ये होती है कि ऐसा बंदा उसके साथ हम चूज करें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ जो उसको सपोर्ट करे। अगर एक बंदा उनका कैंडिडेट है वाइट कलर का है और गोरा है, तो फिर पार्टी कोशिश करती है कि उसके साथ कोई ब्लैक हो या कोई एशियन हो, ताकि उनको इलेक्शन के अंदर दोनों जो एथनिक जो एथनिसिटी के जो गोरे हैं और ब्लैक हैं, दोनों के ही वोट उनको मिल जाए। फिर वो कोशिश करते हैं कि वो किसी अ, ऐसी स्टेट से हो, अगर जिस स्टेट से प्रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंडस्ट्रियल स्टेट से है तो वो कोशिश करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कोई किसी एग्रीकल्चरल स्टेट से हो, ताकि उनको जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनके वोट भी मिल जाए और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके वोट भी उनको मिल जाए। तो ये ये देखा जाता है वहाँ पे, ये चीज़ें नोट की जाती हैं। नोट करने के बाद उनको फिर चूज किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं मिलती, उसका ओथ भी प्रेसिडेंट की तरह ही होता है, और और उसकी जो रिमूवल फ्रॉम दी ऑफिस है उसका प्रोसीजर भी वही है, इम्पीचमेंट का ही है, और वो रिजाइन भी कर सकता है। तो ये तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड the election of vice president. In our next lecture, we shall discuss about the duties of vice president and powers of American president. Now I shall unmute you all. You can ask me any question regarding today's lecture and lecture of yesterday. अस्सलाम वालेकुम। Any question? हेलो सर, जी जी। तो थोड़ा सा इलेक्टोरल बोर्ड के बारे में बताइएगा, इसकी काउंटिंग वगैरह के बारे में और इसकी रेशो के बारे में। कितनी पॉपुलेशन पे एक वोट मतलब एवरेज है इसकी? क्वेश्चन अपना रिपीट करें। मैंने कहा सर इलेक्टोरल वोट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करिएगा, कितनी पॉपुलेशन पे इसकी रेशो है और ये कैसे है। आप जो सा वो बता रहे थे 21 या 22 और वो भी वोट सारे चले जाएंगे काइंडली। कितनी पॉपुलेशन पे क्या है? वोट की बात कर रहे हैं सर, पॉपुलेशन पे कितने वोट बनते हैं? सर एक वोट कितनी पॉपुलेशन पे आता है? कौन सा एक वोट? सर हम वाइस प्रेसिडेंट को डालते हैं, आप कह रहे थे कि जो सा एक वोट है वो काफी ज्यादा लोगों में सर आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
अच्छा, वो समझ आ गया। वो ये है, देखें जो इलेक्टोरल्स है, इलेक्टोरल्स की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, हेलो। जी जी सर, बिल्कुल इलेक्टोरल्स की बात। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूयॉर्क के अंदर 43 इलेक्टोरल हैं, तो जी उस स्टेट की जो आबादी होगी, तो ये पहले एक प्रोसीजर था इन पास्ट कि इतने वोटों पे इतने इलेक्टोरल वहां पे होंगे हर स्टेट में। लेकिन अब ये है, इलेक्टोरल जो हैं दे आर फिक्स, उनके नंबर फिक्स कर दिए गए हैं। अब आबादी बढ़ी जा रही है लेकिन उनके नंबर फिक्स हैं। तो आबादी बढ़ती जाएगी तो फिर उस हिसाब से ये चीज जो है डिवाइड होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूयॉर्क के 43 इलेक्टोरल हैं, तो वहां पे अगर आबादी फॉर एग्जाम्पल 43,000 या 43 लाख लोग हैं, 43 लाख समझ लें, तो 1 लाख पे एक इलेक्टोरल सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर वही आबादी जो है वो 86 लाख हो जाती है, तो वो फिर 2 लाख पे एक इलेक्टोरल होगा। यानी इलेक्टोरल जो है वो उनका नंबर अब चेंज नहीं होना, वो फिक्स हो गया। लेकिन इन पास्ट ये था कि आबादी जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो इलेक्टोरल जो है उनके नंबर भी बढ़ रहे थे। इसी तरह जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नंबर बढ़ रहे थे, क्योंकि पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नंबर बढ़ने थे तो फिर उसी हिसाब से इलेक्टोरल्स के भी नंबर बढ़ जाने थे। अब क्योंकि ये नंबर फिक्स कर दिया है उन्होंने 538 पे, यानी 438 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं, 100 सेनेट के मेंबर है, 538 इलेक्टोरल्स होंगे टोटल इन ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हर स्टेट के अंदर जितने मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्लस 2 सेनेट के मिला के उतने इलेक्टोरल उस स्टेट के भी फिक्स कर दिए गए। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी जाएगी उसी तरह वो उस हिसाब से ही वो उतने वोट यानी कि बढ़ते जाएंगे एक इलेक्टोरल पे। तो आइए समझ। हेलो, जी सर, अब आ गई, अब आ आगे? गई है सर। हाँ चले हाँ सही। जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। अच्छा, अभी फिर जुमा पढ़ना है आपने? हाँ जी, जी सर, मैंने कहा जुमा पढ़ना है। अजान हो जी गई? सर, जुमे का टाइम हो गया। जी सर, हो रही है। तो चलिए तो जुमा पढ़ लें, बाकी अब जी फिर सर। ट्यूसडे को होगा है लेक्चर। जी सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।